ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسمillahirrahmanirrahim۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بینس کالونی روڈ نمبر 10 پہ آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ کی پروقار تقریب، کیک کاٹا گیا، عشائیہ کا اہتمام۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز، کراچی۔ حمایتی نیوز پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ کے موقع پہ 26 جولائی 2025 کو ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام حلقہ PS 86 کے سرگرم رہنما جاوید اقبال کاکو، رسول خان سواتی، سرپرست اعلیٰ ملک طارق آوان، عبدالرحیم حمایتی، حاجی دل مراد حمایتی، جان احمد زئی، محمد شعیب مغل جان، محمد بلوچ، محمد جاوید نوید گجر اور کارکنان کی جانب سے کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پارٹی رہنماؤں، منتخب نمائندوں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی راجہ عبدالرزاق تھے، جنہوں نے آصف علی زرداری کو نیک خواہشات پیش کی اور ان کی پارٹی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ UC چیئرمین جناب جاوید اقبال کاکو، صدر رسول خان سواتی، سرپرست اعلیٰ ملک طارق آوان، جنرل کونسلر ذوالفقار علی ٹالانی، کونسلر عبدالرحیم حمایتی، سابقہ UC چیئرمین حاجی دل مراد حمایتی، عدنان خان نیازی کی سربراہی میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد مدینہ روڈ نمبر 10 پہ کیا گیا، جہاں 70 پاؤنڈ وزنی خصوصی کیک کاٹا گیا۔ MP راجہ عبدالرزاق نے کاٹا۔ اس موقع پہ آصف علی زرداری کی تصاویر سے مزین خوبصورت پینافلیکسز آویزاں کیے گئے تھے، جن پہ سالگرہ مبارک اور ہیپی برتھ ڈے آصف علی زرداری کے الفاظ درج تھے، اور اس میں MP راجہ عبدالرزاق، انور بھائی، دلجان مروت، عبدالرشید پاور، سردار اختر عرفانی صاحب، DSP سکھن شوکت تنولی صاحب، ڈاکٹر طارق فاروق عثمانی کی کثر باٹ، چاچا شینا اور سندھی ثقافت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اجرک کے تحفے پیش کیے گئے، تمام آنے والے مہمانوں کو اجرک کے تحفے پہنائے گئے۔ تقریب کے بعد مہمانوں اور منتخب نمائندوں کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں پارٹی اتحاد اور یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ اس تقریب نے واضح کر دیا کہ آصف علی زرداری پارٹی کارکنان کے دلوں میں آج بھی ایک مقبول اور مضبوط قیادت کے طور پہ زندہ ہے۔ شرکا نے ان کی دراز عمر، صحت، ملکی سیاست میں کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ سائنس جیالوں کو یہ پیغام ہے کہ جیالے متحد رہیں، پارٹی کے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ یہ پارٹی ایسی ویسی پارٹی نہیں ہے۔ اس پارٹی کی ایک تاریخ ہے، اس پارٹی کی ایک قربانی ہے، اس پارٹی کی ایک جدوجہد ہے۔ اس لیے اب ورکر کو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ورکر آپس میں متحد رہ کر، متحد ہو کر پاکستان پیپل پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ آج 70ویں سالگرہ بنائی جا رہی ہے آصف علی زرداری کے موقع، ان کے جانوں کو کیا پیغام دو گے سر؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے مرد حر جناب آصف زرداری صاحب کا آج جنم دن ہم نے منایا، اور آج ہم نے اپنے PS کے جو نو منتخب ہمارے سینئر نائب صدر ہیں انور بلوچ، اور ہمارے جنرل سیکرٹری رسول خان، اور ہمارے انفارمنٹ سیکرٹری دلجان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پاکستان اور پاکستان پیپل پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا یہ 70ویں سالگرہ ہے، اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد محترمہ اور محترمہ کے بعد جو سب سے زیادہ جدوجہد کی ہے پاکستان پیپل پارٹی کو قائم و دائم رکھا اور پاکستان پیپل پارٹی کو مضبوط رکھا۔ اور آپ پچھلے 15-20 سال سے دیکھیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو کو چیئرمین ہے، صدر پاکستان ہے اس وقت، انہوں نے اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی مضبوطی کے لیے
जो काम किया है वो नाकाबिल फरामोश है। तो इस मौके पे हम सब वर्करों के लिए एक मैसेज है, पैगाम है कि हम को चेयरमैन और सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी से सीखें कि जिस तरह वो सब्र से बर्दाश्त से सियासत को लेके चल रहे हैं, ये हमारे लिए एक सीखने का मकाम है। बेहसियत एक पाकिस्तान पीपल पार्टी एक सिपाही हम उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, सियासत में बर्दाश्त सिखाया, सियासत में हमें सब्र सिखाया और सियासत में हमें मफामत सिखाया। सियासत से उन्होंने जो अदावत थी, जो नफरत थी, उसका खात्मा कर दिया है। हम उसके पैरोकार हैं इंशाल्लाह। उसी के जो मिशन है, जो बिलावल भुट्टो साहब को जो मिशन मिला है, जो आसिफ अली जरदारी से आगे बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। आज 17वीं सालगिरह बनाई जा रही है आसिफ अली जरदारी के, तो आज केक भी काटा गया। आज की आवाम को, उसके जियालों को आज क्या पैगाम देना चाहोगे? ये मर्द और जनाब आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह का प्रोग्राम है और इस हवाले से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनों का जोश व खरोश आप देख सकते हैं। मर्द और जनाब आसिफ अली जरदारी मुफाहिमत के सियासत के बादशाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मुफाहिमत की सियासत की वजह से 3 सूबों में हमारे गवर्नर, बलूचिस्तान में हमारा वज़ीर आला, सिंध में हमारा वज़ीर आला, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब और KPK में हमारे गवर्नर जो हैं, ये मुफाहिमत की सियासत आसिफ अली जरदारी साहब के कमाल है और हम इस 70वीं सालगिरह पे उनको मलिर PS 86 की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। अनवर बलोच, दिलजान मरावत साहब, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सरदार अख्तर यूसुफ अरफानी साहब, UC चेयरमैन जावेद काकू साहब, रशीद पंवर साहब, तारिक मलिक साहब, हमारे PS की यूथ की सदर नवीद गुजर साहब और तमाम दोस्त जो बैठे हुए हैं, केटल कॉलोनी के बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम जी बटो। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा आसिफ साहब की जो 70वीं सालगिरह मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, तो आपको भी मुबारक हो और आपका मैं शुक्रिया भी यकीनन अदा करूंगा कि हर PS में ये प्रोग्राम उसकी शान निशान मनाया जा रहा है। वैसे कराची डिवीज़न ने एक अनाउंस किया था कि ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि चूँकि नई नई तंजीमें भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है हमारा, अगर हम इसको एक जगह मनाते तो शायद इतने लोग सब उसमें पार्टिसिपेट न कर पाते। तो इस हवाले से मैंने रात को ही एक मैसेज चलाया कल कि इसको हर PS में मनाया जाएगा और इसी तरह से आज 88 में भी प्रोग्राम हुआ था शाम में, अभी 86 में हम उसका सालगिरह मना रहे हैं, जिसको हम मर्द हुर कहते हैं, मर्द मुफाहिमत कहते हैं, मुफाहिमत का बादशाह कहते हैं, वो है आसिफ अली जरदारी साहब। तो इस हवाले से मैं आपको, आपकी तंजीम को, दोस्तों को के नई तंजीमें बनी हुई हैं, हमारे ओहदेदारान बैठे हुए हैं, उनको मुबारकबाद भी हो। यकीनन तंजीमी हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्तों के खदशात हैं, मेरे भी हो सकते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन हम उन सारे मसाइल को जमहूरी तरीके से, जमहूरी तर्ज से, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए पार्टी क़यादत के पास अपनी इंशाअल्लाह ताला बात पहुंचाएंगे और आप लोगों ने पहुंचा भी दी है इंशाअल्लाह, वो भी कोई इशू नहीं है। हमारा किसी भी शख्स के साथ कोई जातियात नहीं है, पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन उसूलों पे ज़ाहिर सौदेबाजी ना होगी, ना हो सकती है। ये हमको भुट्टो ने सिखाया था, ये हमको बेनज़ीर ने सिखाया था। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पार्टी को मजबूत, अल्लाह के बंदे, हाकिम दल हमारा फखर है, हाकिम दल हमारी कमजोरियां, हाकिम दल का एक कमाल है, हाकिम दल हमारी कमजोरियां हमको बताता है, सच्चा आदमी है। हाकिम दल 2 नंबरी नहीं करता है कि ये खामखा की वीडियो चलाता है,
हाकिम दल जेन्युइन चीज चलाता है, जहाँ हमारी कमजोरी होती है हमको बताता है कि भाई यहाँ सर PS 86 के अंदर है 70वीं सालगिरह आसिफ अली जरदारी की बनाई गई, तो लोगों ने शिरकत की, केक भी काटे गए, तो उसके मौके पे क्या पैगाम देना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दल साहब, आप ने प्रोग्राम देखा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक समझो हमने बिल्कुल एक यानी 100 में से 10 आदमी बुलाए अपने हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद आपने खलकत देखी कि कितने लोग नमाज पढ़ते ही सारे हमारे दोस्त भाई जो थे वो हाल की तरफ आए और एक बेहतरीन मैसेज दिया यूसी कैटल का हमेशा की तरह कि जिस तरह कैटल कॉलोनी के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो आज आपने आज भी देख लिया। और इससे पहले कई दफ़ा जो रैलियों के मामलात होते हैं आपके सामने, तो ये आज हमारे कायद जो है उनका जरदारी साहब का आज जन्मदिन था और हमने जोशो वलवले के साथ बनाया। राजा अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने केक काटा और दोस्तों ने शिरकत की। बहुत सारे लोग तो बाद में आए, आपने देखे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों की मोहब्बत है, लगाव है। पहले ये रुझान लोगों का कैटल कॉलोनी में नहीं था पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मलक तारिक अवान की जो टीम मैदान अमल में आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये वो टीम है जिन्होंने बहुत सारे मार्के जो है वो सर कर लिए, जिसमें आप देखें कि यूसी कैटल आज से पहले कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीती थी। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का हम पे खुसूसी एहसान है, करम है कि अल्लाह ने ये एजाज़ मुझे दिया कि मैं यहाँ शुक्र अदा करूँ वो कम है। और मेरे साथ साथ पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीती है, चारों काउंसलर जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीते हैं। तो बहरहाल कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ कि आपने देखा कि कैटल कॉलोनी में बड़े स्पीड से हमारे दबंग MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, हमारे दबंग MP राजा अब्दुल रज़ाक साहब की क़यादत में हम इलाके में काम करा रहे हैं, गलियां पक्की करा रहे हैं, पेवर का काम है और सेवरेज का काम है, पानी के मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें चुना है खिदमत के लिए, हमारी कोशिश है कि हम इस खिदमत में अल्लाह के यहाँ भी जवाब दें और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के यहाँ भी सरखुरू होके जाएं और अपने आवाम के अंदर भी हम सरखुरू हों। तो मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं हाकिम दल साहब वो कम है। सर एक छोटा सा सवाल है, यही पीपल्स पार्टी में यही सारी यहाँ पे पार्टियाँ वोट पे जीतती, काम पे नहीं होता था, और अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से जब हमने पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे आए हो और पीपल्स पार्टी कैटल कॉलोनी के अंदर ऐसे समझो छा गई है और काफ़ी काम आपकी तवज्जो से काफ़ी काम हो चुके हैं, तो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, तो उस पर आप क्या कहोगे थोड़ा? देखिए मैंने कहा ना, अल्लाह की कोई खुसूसी मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमारे हाथों से ये सारे काम लिखे हुए थे, ये हमारे तकदीर में अल्लाह ने लिखा था, हमारी मेहनत और हमारी नीयत की वजह से। मेरी पूरी टीम आपके सामने, आप मेरे चारों काउंसलर उठाएं, ख़ास तौर पर हमारे अदनान खान नियाजी, ये वो सतून है मेरे अल्लाह की मेहरबानी से कि इन्होंने इलाके के चप्पे चप्पे में काम पहुंचा दिया है। इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा है। देखो ज़ीरो करना तो मैं कहता हूँ कि वो तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता। ज़ीरो तो दुनिया में जो इंसान है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी तो हमारे में भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 100% यहाँ इलाका तबाह था वो आज 80% बन चुका है। 20% अभी भी कमी है, पूरी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों का साथ होगा, बड़ों की दुआएं होंगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। सर दूसरी बात ये, तो पहले तो किसी को कोई पता नहीं है, जैसे दूसरी दाव चोरोगी का काम होता है, याद लोग आपको करते हैं, तो इतनी मोहब्बत आपने लोगों में जगा दी है, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि दाऊद चौरंगी में भी अगर बात होती है तो मिसाल यूसी कैटल की दी जाती है, तो शाह लतीफ़ में अगर काम की बात होती है तो यूसी कैटल की मिसाल दी जाती है। मैंने कहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे दोस्तों का साथ है, भाइयों का साथ है। एक फ़र्द वाहिद जावेद का को कुछ भी नहीं है,
जावेद काको तब है जब उसकी पूरी टीम है। उसकी पूरी टीम में तमाम वो लोग हैं जो हमारे साथ चलने वाले हैं, चाहे वो सीट पे हैं या नहीं है, वो सीटों से हट के भी मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो हमारे साथ देते हैं, हमारे लिए टाइम भी देते हैं, हमारे लिए जो है ना वो 2 रुपये खर्च भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावेद काको, ये जावेद काको की बात नहीं है, पूरी टीम की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है। जी बहुत शुक्रिया। 70वीं सालगिरह पर असफल जरदारी की याद हुई है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? हम 70वीं सालगिरह सदर पाकिस्तान मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी साहब को 70वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और यूसी केटल कॉलोनी में शानदार प्रोग्राम जो रखा गया है, ये 2 प्रोग्राम है अभी। एक तो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके एजाज में शायर रखा गया है, दूसरा सदर पाकिस्तान का सालगिरह का केक काटा गया है। हम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जिए भुट्टो जिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, बहुत मैं आपको देख रहा हूँ, आप हर पीपल्स पार्टी के जाले भी रहे हो, जिस प्रोग्राम भी आप करते हो। आज यहाँ PS86 के अंदर 70वीं आसिफ अली जरदारी की सालगिरह बनाई जा रही है, उसके मौके पर क्या कहोगे? आसिफ साहब की 70वीं सालगिरह है, PS86 वालों ने रखी है। आज यहाँ पार्टी की हिदायत थी कि हर ज़िला ये प्रोग्राम करे, और वैसे भी हिदायत नहीं भी करते, आसिफ साहब से लोगों की मोहब्बत है, करते हैं। और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट ने ये ऐलान किया, ये शेड्यूल दिया कि बहुत वसी ज़िला है ज़िला मलीर, उसमें 6 PS हैं और 6 MPA हैं। तो राजा रज़ाक साहब ने ऐलान किया कि 6 PS में अलग अलग प्रोग्राम होने चाहिए। तो इसलिए आज PS86 में सालगिरह है और आसिफ जरदारी साहब के सालगिरह है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं, अपनी पूरी क़यादत को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आसिफ साहब के बच्चों को, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, अहले अयाल को और सबको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और क्यों न करें, लोग हमें कहते हैं भाई तुम लोग भुट्टो साहब की सालगिरह मनाते हो, तुम लोग बीबी की सालगिरह मनाते हो, तो आज तुम लोग आसिफ साहब की सालगिरह मना रहे हो। बाबा भुट्टो साहब ने भी लाजवाल कुर्बानियाँ दी, लाजवाल कारनामे किए, बेनज़ीर साहबा के कारनामे और कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। और आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल जेल में गुजारे हैं और दोनों ने मर्द आइन बनकर, मर्द हुर बनकर हमेशा अपने आप को पेश किया है। आपकी जुर्रत और हिम्मत को हम सलाम कहते हैं। और आज आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मैं ये बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, जब बीबी साहबा शहीद हो गई तो शरपसंदों को, लोगों को मौका मिल गया। KPK में हालात सही नहीं थे, बलूचिस्तान में भी हालात बुरे थे, सिंध में बीबी साहबा की वजह से पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान जल रहा था, लोग न खपे के नारे लगा रहे थे। तो आसिफ साहब ने कहा नहीं, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने भारी कीमतें अदा की हैं, हम आसानी से अपने वतन अजीज़ को टूटने नहीं देंगे, वतन के लिए काम करेंगे, वतन के लिए मर मिटेंगे। मेरे साथ केक काट रहे हैं, नारे भुट्टो, हिम्मत तुम्हारी जरदारी, जुर्रत तुम्हारी जरदारी, भुट्टो का सिपाही जरदारी, हिम्मत तुम्हारी जरदारी, जुर्रत तुम्हारी जरदारी, जेलों में सारी। दोस्तों ये दोस्तों इकबाल को जगह पेश कर रहे हैं और जावेद इकबाल मलिक तारिक आवान को जगह पेश करेंगे। हेलो, आज आप सबकी भरपूर तालियों में। और केटल कॉलोनी वालों, आप लोगों को मुबारक हो कि आपका मैं गुजारिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।